4,000 meters above sea level at the far end of Shopia constituency, right on its borders with Rajouri and Puch. The Pir Panjal Mountains have been a critical part of recent public discourse. You've heard people talking about attacks on civilians and on the Indian Army. Well, these high passes are where terrorists are thought to be hiding out. The peoples of the high mountains, the Gujars and the Bakarwals, have for decades been preyed on by militants seeking food. They're obviously in no position to refuse. These wild mountains, 4,000 meters, 5,000 meters high, are only populated by the Gujar Bakarwal community, the peoples of Jammu and Kashmir's Pir Panjal Mountains, in the summer months. They bring their livestock, their buffaloes, their sheep, their horses up to the high pastures and have done so for millennia. Terrorists have often used the presence of these mountain peoples, the Gujars and the Bakarwals, to find safe haven, shelter and food. The government's made big efforts over the years to make sure that the Gujars and the Bakarwals don't side with jihadists and with violence, but with the government and with some success. But the peoples of the mountains are complaining bitterly that they've been ignored since Article 370 was abrogated. Elsewhere in Kashmir, the debates about Article 370, about Kashmiri identity, and about Delhi's designs in Jammu and Kashmir. Here, among the Gujar and Bakarwals, the debates about livelihoods, jobs, and increasingly desperate economic conditions. People we've spoken to have complained about the collapsing price of wool, harassment by wildlife authorities, and the lack of jobs and education for the community. Recently, the government of Jammu and Kashmir also extended reservations to the Pahadi community, which includes some upper castes and people from non-Gujar communities living in the mountains. And among the Gujars, it's the biggest single issue because they believe that rights that they have fought to win over decades may now be lost in the expediency of electoral politics. हमको चार दिक्कत की परेशानी आ रही है बहुत गवर्नमेंट की तरफ से। जो हमें परेशानी ये आती है कि सबसे पहले जो हमारे जवान बच्चे हैं पढ़ के वो ना मजदूरी के लिए रहे, किसी काम के लिए नहीं, वो नहीं रही। तो हमारे बच्चे छोटे पढ़ते हैं यहाँ पे डोक में। 6 महीने का ये एक लगाया था गवर्नमेंट ने, ऑर्डर निकाला था कि मास्टर, वो ऑर्डर कुछ नहीं है। ये बैठते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्डर इनको कोई नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो भेड़ बकरी है इससे हमारा गुजारा है, इसकी ऊन है जो काटते हैं हम, इससे हम अपनी रोज़ी रोटी मुहैया करते थे, लेकिन ये भी इसका भी कुछ फ़ायदा हमें नहीं है। कल मैंने देखा जावेद साहब, ये एक मिनट आपसे पूछूंगा, कई जगह तो लोगों ने अपना ऊन फेंक दिया था, वो कह रहे थे कि इसका दाम ही नहीं मिल रहा है। देखो बिल्कुल नुकसान फेंके नहीं करेंगे क्या, इसको फेंकना ही पड़ेगा। क्यों कि जब वो 500 किलोमीटर से ऊन वाला घोड़ा आएगा, 1000 रुपये घोड़ा लेगा, उसको क्या करेंगे? इधर वो ज़ीरो है, उसका कुछ कीमत नहीं है, क्या करना है? तीसरी बात ये है, तीसरी मसला ये है हमारा कि वाइल्ड लाइफ वाले से हमें बहुत परेशानी आ रही है। चाय बेचने में बहुत दिक्कत है, हर गल में दिक्कत है, लकड़ जलाने में बहुत दिक्कत है, डोक में आने से बहुत दिक्कत है हमें, क्योंकि डोक में हमारा दादा और परदादा तकरीबन 100 साल पहले, 100 साल पहले, और इस वक्त हमारे 75 साल हमारी उम्र है हमारी इस वक्त गुजारा करते हैं। तो हमको ये परेशानी बहुत आ रही है कि हमारा घोड़ा बीमार हो जाता है, भेड़ बीमार हो जाती है, इंसान बीमार हो जाता है। हमारे लिए वो दवाई लाते हैं कि जिस दवाई के हमारे ज़िंदगी खाने में ख़त्म हो जाती है, वो ऐसी दवाई होती है। क्यों कि हमें घोड़े को दवाई दी। ये इतने आदमी सुन रहे हैं, 3-3 लाख के हमारे घोड़े नुकसान हो गए यहाँ पे, लेकिन हमारे पास मीडिया वाला कोई नहीं आया। वो इस साल जो नुकसान हुआ है लोगों के माल मवेशी का, क्योंकि पानी नहीं पड़ा है, घास उतनी आई नहीं है, जी, उसका अपने लीडरों से या अफसरों से कोई मुआवजे की या और किसी चीज़ की बात हुई है? कुछ बात नहीं हुई, कोई हमारे पास आया ही नहीं, गुज्जर बकरवाल के पास कोई आया नहीं। रहबर तालीम स्कीम बहुत
अरसे से चली आ रही है। आप मास्टर कब लगे थे? सर मुझे 2 साल हो गए, 3 साल इस मतलब एप्लीकेशन लगाए हुए, अभी तक आर्डर शार्टर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इधर, अपने ही पैसे से पढ़ा रहा हूँ। कोई मुझे अभी गवर्नमेंट से कोई टेंट नहीं मिला है, कोई मुझे किताब कॉपी वगैरह कुछ नहीं मिला है, मैं अपने खर्चे से अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। रहमत तालीम के पहले जो टीचर थे जी सर, जिनको नौकरी दी गई थी, वो सारे कहाँ हैं? उनकी नौकरियां बंद हो गई कि उनको काम से निकाल दिया या क्या हुआ उनका? कुछ सर अभी पढ़ा रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही चल और रहा है। उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है ना? तनख्वाह भी नहीं मिलती सर, उसमें क्या है, किसी को 20,000 मिल रही है, किसी को 30,000 मिल रही है। अब पूरे 6 महीने हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो 6 महीने में 30 या 20,000 में से हमारा भी गुजारा नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। एक मसला जहाँ भी मैं गुज्जर बकरवालों से इस साल बात किया, हर एक ये मसला उठा रहा था कि ये रिजर्वेशन का, वो कह रहे थे कि जो हमें थोड़ा सा हक मिला बहुत साल मेहनत करने के बाद, आवाज़ उठाने के बाद, वो भी छीन लिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा आप समझा दे सकते हो, जो गुज्जर बकरवाल बच्चा है जो यहाँ ढोकों में आता है, 3-4 महीने काटता है, उसकी पढ़ाई लिखाई में क्या मुश्किलें होती है शहरी आवासी के मुकाबले में? देखिए सर, जो बच्चे शहरी हैं, जो यहाँ के गुज्जर बकरवाल हैं, गुज्जर बकरवाल, अब तो एक तो मेन चीज़ ये है, एक मेन मुद्दा ये है कि गुज्जर बकरवाल जो है वो अब खुद तो रह नहीं सकता, उसको भेड़ बकरियों के साथ आना ही पड़ता है। अब उसका बच्चा जो है वो वहाँ पे नहीं रह सकता, वो भी यहाँ पे आएगा, उसने आना है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि उसके लिए भी अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी कुछ है नहीं है। अब बच्चा यहाँ पे आ रहा है, अब वो पढ़ाई के लिए इधर आ रहा है, यहाँ पे भी अगर उसको पढ़ाई नहीं मिल रही है तो वो बिल्कुल बेकार ही जा रहा है यहाँ से। अब जो अमीर आदमी हैं वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को अच्छी तरीके से, जो गरीब लोग हैं यहाँ पे भेड़ बकरियाँ लेके आ रहे हैं, वो अगर यहाँ पे आएंगे उनके बच्चों को वहाँ को कौन पढ़ाएगा? अब यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होगी, अच्छे उनको उस्ताद मिल जाएंगे यहाँ पे, तो उनका भी मतलब पढ़ाई का जो है अच्छा कारोबार चला जाएगा। एक चीज़ बताइए, ये कहा जा रहा था कि 370 के हटने के बाद सरकार बहुत नौकरियां खोलेगी, सर मिलेगी, गुज्जर बकरवाल को कोई हिस्सा मिला इसमें? सर उसमें आपने खुद देखा होगा, 370 के बाद कोई नौकरी नहीं मिली, नौजवान ऐसे बैठे हुए हैं, जो नौकरियां मिलती हैं बेचारे इंटरव्यू वगैरह को सब कुछ करके तो आज तक वो दर दर फिर रहे हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली है। अब जो यहाँ पे भी मिल रही है वो भी अच्छी तरीके से नहीं चल रही है। जैसे कि जैसे हमारे सीजनल हैं, हाँ। अब 6 महीने यहाँ पे बैठ रहे हैं, सर्दियों में आके बैठ रहे हैं, अब उनको क्या मिल रहा है इधर? वही 20,000 30,000, कुछ को ऑर्डर नहीं मिले हैं, कुछ को ये है, बस उसी हिसाब से लोग भी परेशान बैठे हैं यहाँ पे। 4,500 meters above sea level, this wild terrain, punctuated by 7 great Himalayan lakes, marks the furthest extremity of the district of Shopia in southern Kashmir, which goes to vote in just a few days. With cameraman Danishman Khan, I'm going to be bringing you a series of reports on those elections. But I wanted to start here, more than a day's hike from the nearest road, where the most marginalized people of Jammu and Kashmir live. There's a tiny population of nomadic Gujjars and Bakarwals who bring their herds of buffaloes and goats and sheep up into the mountains every summer and take them down again when the winter comes. As we speak, winter is starting to set in on the highest passes, and as you can see behind me in the Great Lake of Chandansar, almost everyone has left. Some people will vote in Rajouri, some people will come down to Shopia and vote. To get here, we've had to hike a day and a half, using pack horses to get past some truly brutal terrain, and we can only admire people who live and eke out a living here, but whom the government, like past governments, just hasn't been bothered listening to. The problems elsewhere in Kashmir have to do with questions of identity, Article 370, and other big ideological and identity issues. Here people are talking about jobs, about livelihoods, about their pastoral economy destroyed and the complete lack of infrastructure for their children. But I've been hearing the same stories I've been hearing for 20 years from this community, that nobody, not bureaucrats, not politicians, not administrators, nobody is willing to listen to them.